وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ آج اس عظیم اجتماع کا سبب اور وجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے۔ انسان بامقصد اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو سب سے عظیم مقصد بیان فرمایا ہے، بہت سارے دیگر مقاصد کے ساتھ، وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات بالخصوص یہ ثقلین جن و انس اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبدیت کو اختیار کریں۔ گویا عبدیت منتہائے مقصود ہے، بندگی منتہائے مقصود ہے، اور بندگی کے لیے جو سیڑھی ہے، جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، کائنات میں نے اتنے عظیم پیغمبر بھیجے، کثیر پیغمبر بھیجے، اتنے زیادہ کہ جن کی تعداد کے بارے میں ایک گمان غالب کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب۔ اور ان سب رسولوں کا جو سب سے بڑا حق بیان کیا ہے، اس کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت لازم نہ ہو۔ اطاعت لازم ہے، یعنی آدم تھے تو ان کی اطاعت لازم ہے، نوح تھے تو ان کی اطاعت لازم تھی، بعد ازاں اگر خلیل اللہ آئے ہیں تو ان کی اطاعت لازم ہے، اسماعیل کی اطاعت لازم ہے، اسحاق و یعقوب کی اطاعت لازم ہے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، تمام نبی، ان کی اطاعت لازم ہے، داؤد کی اطاعت لازم ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے، اور پھر سب سے آخر میں اس کو بھیجا کہ جس کی اطاعت خود انبیاء پر بھی لازم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، نبیوں پر بھی لازم کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ آج اسی اطاعت کا ایک منظر یہ ہے کہ آپ صبح صبح اس وسیع و عریض میدان میں جمع ہیں، اس لیے جمع ہیں کہ آپ کے نبی کا حکم ہے، آپ کے پیغمبر کا حکم ہے،
वगरना कौन अपनी खुशी के दिन अपने घर से सुबह सुबह निकलता, कौन अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालता। इसलिए कि ये मसरूफियत वो मसरूफियत है जिसके लिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, आपने तालीम इरशाद फरमाई। और मेरे नबी का मुकाम और मर्तबा यह है कि ऐलान किया गया, वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। बात तुम मुस्तफा की मानोगे, लेकिन ऐसे होगा कि तुम मुस्तफा की नहीं अल्लाह की मानोगे। और अगर तुम मुस्तफा की नहीं मानते, उससे इन्हिराफ करते हो, आज का दिन मान लो और फिर बाकी सारा साल न मानो, तो नबी पाक ने फरमा दिया, मन आसानी फकत असल्ला। मेरी नाफरमानी सिर्फ मेरी नाफरमानी नहीं है, बल्कि जो मेरी नाफरमानी करता है दर हकीकत वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। अब आपकी बात मानना अल्लाह की बात मानना है, और आपकी नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी है। लेकिन ठहरिए, सुनिए कान खोलकर और दिल में जाने दीजिए इस बात को। बातें दोनों की मानो तो एक ही मुराद है, अताते रसूल करो तो अताते इलाही हो जाती है। बातें दोनों की एक हैं, क्योंकि जमीन वाला तब तक बोलता नहीं जब तक आसमान वाला बुलाता नहीं। लेकिन जातें दो हैं, जातें दो हैं। उसका हक फाइक है, उसकी तौहीद का हक बालातर है, उसके मुकाबिल कोई नबी नहीं। हत्ता कि मेरे नबी जिन पर मेरी जिंद जान कुर्बान, आप भी अपने रब के बराबर नहीं, बल्कि आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अल्लाह के आब्द हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, और आपके जिम्मे भी रब्बे करीम की अताअत लाजिम है। और आपने सबसे बड़ा और सबसे बेहतर और सबसे औला और सबसे आला बंदा बनकर दिखाया है। मेरी मां कहती है, आप इतना क्यों थकाते खुद को? ना आपके जिम्मे कोई गुनाह, ना आपके जिम्मे कोई खता। अल्लाह ने आपको खताओं से पाक मुबरहन पैदा किया, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पैदा किया। आप कैसे इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं? इमाम कायनात फरमाते हैं जवाब देते हुए, अफला अकूना अब्दन शकूरा। मेरे जिम्मे खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, मासूम अनिल खता हूं। अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई, बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे जिम्मे भी अपने रब की अब्दियत इख्तियार करते हुए उसका शुक्रगुजार बंदा बनना लाजिम है। गोया जितनी अताअत करोगे उतनी शुक्रगुजारी आती जाएगी, और अताअत बाबरकत होती है। अताअत करो, मानते चले जाओ, मर्जी का नहीं, अपनी चॉइस का नहीं, अपने इंतखाब का नहीं कि तुम अपनी मर्जी का कुछ मानो और बाकी छोड़ दो। मानना है तो मेरे नबी को हुक्म दिया गया, ऐ मेरे हबीब, तुम्हें हमने सारी कायनात के लिए उसवा हसना करार दिया, लेकिन तुम्हारे लिए अगर कोई मशअले राह है, अगर तुम्हारे लिए कोई चिरागे राह है, अगर तुम्हारे लिए कोई मुता है, अगर तुम्हारे लिए किसी के नक्शे पा को देखना जरूरी है, तुम इब्राहिम को देखना, तुम इब्राहिम को देखना। कहां देखना? आज आप भी जाके देखना। और जब आप अपने जानवर को लिटा लें, उस वक्त कुरान की इस आयत को सामने रखना, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब दोनों ने सर झुकाए, दोनों ने तस्लीम किया, दोनों ने अपना अपना फरीजा अदा करने की ठानी। एक ने छुरी पकड़ ली है और एक ने अपनी जबीन झुका दी है। दोनों मानने वाले वतल्लहु लिलजबीन। अल्लाह अकबर। बाप बेटे के गले पे छुरी चला रहा है। उसे तुमसे प्यार ना होता तो तुम्हारे भी बेटे जिबा करवा देता। उसने इस्माइल को भी जिबा नहीं होने दिया, और उसने तुम्हारे बच्चों को भी बचा लिया। लेकिन उसने जैसी अताअत इब्राहिम की पसंद की, तुमसे भी वही अताअत चाहता है।
तुम अपनी मर्जी का मानो, अपनी मर्जी का छोड़ दो, ये मकसूद नहीं है, ये मकसूद इबादत नहीं है, ये मकसूद अब्दियत नहीं है, और ये मंशा अतात नहीं हो सकता कि तुम अपनी मर्जी का मानो और अपनी मर्जी के खिलाफ छोड़ दो, बल्कि उसी तरह से मानना है जैसे उसने माना। उसने कैसे माना? कुरान कहता है बाप बेटे के गले पे छुरी चला रहा और हमने दोनों की कैफियत को जांचा, परखा और ऐलान किया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, कद सद्दक़्त रुया। इब्राहिम बस हो गई, इंतहा पे पहुंचे तुम कामयाब ठहरे। तुमने तो ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को ज़िबा करना भी मान लिया है। अब बस अतात जब इंतहा पे पहुंचती है फिर इनाम का आगाज होता है। आजमा के देखो, आजमा के, आजमाइश शर्त है। अतात जब इंतहा पे पहुंचे देखना अल्लाह के इनामात तुम अपनी आंखों से उतरते देखोगे इंशाअल्लाह। और अगर अतात खोटी हो, जैसी मेरी और आपकी है, जैसी मेरे हुक्मरानों की है, जैसे मेरे वतन के वासियों की है, तो फिर इसी तरह से मुब्तलाए अजाब, मुब्तलाए जलालत, इसी तरह से रुसवाइयां। अगर तुम अतात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बना लो, अगर तुम अतात में इस्माइल और इब्राहिम को अपना आइडियल बना लो, तो देखना अल्लाह की रहमत और बरकतें कैसे तुम्हारे लिए नाजिल होती हैं। अल्लाह फरमाते इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम जब किसी की अतात से राजी होते हैं तो हम उन्हें क्या बदला देते हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और आज इस ज़िब्ह अज़ीम का एक मंजर क़यामत तक, खैर के आखिरी जमाने तक इब्राहिम की सुन्नत को नहीं छोड़ा जाएगा। और जितने लोग भी सुन्नत इब्राहिमी पर अपने जानवर ज़िबा करेंगे, इन सब का अजर एक तरफ और इब्राहिम को इन सब के अजर के बराबर अजर अता किया जाता रहेगा। यह है बरकत, यह है बरकत कि जब आप अतात करते हैं अल्लाह इनाम का आगाज कर देता है। यह है बरकत कि अल्लाह फरमाए इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने आपको इमाम बना दिया है लोगों का। यह है बरकत कि इस वादे के बाद कोई नबी भी, तमाम लोगों का इत्तेफाक, कोई एक नबी भी सैयदना इब्राहिम की आल औलाद से बाहर का नहीं है। यह है उसकी बरकत। और अगर आप मान लें और मासियत का रास्ता छोड़ दें, अगर आप अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें, फिर ये हालात तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि हालात किसके हाथ में है? हालात किसके बस में है? हालात को तब्दील करने की कुदरत कौन रखता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह से आप क्या करते हैं? अभी आपने जाना है, छुरी चलाएंगे, आप चलाएं या आपकी तरफ से कसाब चलाए, वो क्या करेगा? बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा हो उसको छोड़ा जा सकता है, उसको अपने मिजाज पर कुर्बान किया जा सकता है, अपने रिवाज के लिए उसको कुर्बान किया जा सकता है? नहीं। अतात सरे मुंह इन्हिराफ नहीं हो सकता। इतनी अतात के अपना मिजाज छोड़ दे। एक सहाबी, मुझे अंदाजा है लेकिन मैं अपनी बात थोड़ी मुकम्मल करना चाहता हूं। एक सहाबी, मुख्तसर करके अर्ज कर देता हूं, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अपने मिजाज के साथ भी अतात नहीं चाहिए। सहाबा की नहीं चाहिए तो मैं और आप कौन हैं? सहाबी को हुक्म दिया अब्दुल्ला बिन रवाहा को, सुबह की नमाज पढ़ के कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए लश्कर फला जगह इंतजार कर रहा है, जाओ जिहाद करने जाना है। जुमे का दिन है, सहाबी घर आए, तैयारी की, दिल में ख्याल आया आखिरी जुमा रसूलुल्लाह के पीछे पड़ जाऊं, शायद वापस ना आ सकूं, शायद जिहाद से लौट ना सकूं, शायद शहीद हो जाऊं, फिर नबी पाक का चेहरा, फिर नबी पाक के अल्फाज, फिर नबी पाक की आवाज ना सुन सकूं। लिहाजा उसने इरादा किया और जुमा पढ़ने आ गया। जब जुमा पढ़ लिया, प्यारे नबी इस्लाम ने देख लिया, आपने बुलाया, अब्दुल्ला तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सरबराह बनाकर फलां लश्कर की क़यादत के लिए भेजा, लोग जमा हो चुके होंगे और तुम यही हो, क्या सबब है? अब्दुल्ला कहते हैं मैं इसलिए रुका कि आपके पीछे जुमा पढ़ लूं, शायद ये आखिरी जुमा हो, नीयत बुरी नहीं है,
अमल बुरा नहीं है, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का नतीजा सुन लीजिए। आपने फरमाया मेरी मानकर जो वहां चले गए, मेरी मानकर वहां चले जाने वाले, तुम कभी सारी कायनात का मालो बता भी जमा कर दो और सबका सब खर्च कर दो, तब भी तुम उनके अजर को नहीं पा सकते। मेरी मानकर आज आखिरी गुजारिश समझिए, याद रखिए, पूरे साल के लिए याद रखिए, नहीं पूरी जिंदगी के लिए याद रखिए। अगर आपने अपने आप को कुर्बान करना सीख लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर आपने 10 दिन के लिए, बहुत से लोगों ने 10 दिन के लिए दाढ़ी बढ़ाई, 10 दिन के लिए, आज अपना जानवर कुर्बान करते ही साथ ही उसे मंडवा देंगे। नाना अपने नबी को सामने रखना, जो जिस नबी का फरमान और उस फरमान की वजह से 10 दिन के बाद तुम्हारे लिए अजर का सबब बन सकते हैं, उस नबी की मुस्तकिल बात मानकर तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। मुस्तकिल बात मानकर ऐसी अतात कि जिसमें अपना मिजाज छोड़ दिया जाए, अपनी जात को कुर्बान कर दिया जाए। और जब ऐसे होता है, अल्लाह उनका जिक्र भी जिंदा करता है, अल्लाह उनकी याद दहानी भी लोगों को करवाता रहता है। फिर उनको फायदा होता है कि जब कहीं जहां कहीं ईमान वाला खड़ा होकर कहता है रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह जो हमसे पहले ईमान वाले चले गए उनकी मग़फ़िरत करना, ये उनको मुकाम मिलेगा जो रसूलुल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुकाने वाले। आज जानवरों के गले पर छुरी चलाने से पहले अपनी गर्दनें अल्लाह उसके रसूल के सामने झुका देना और अपने आप को कुर्बान कर देना। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के दिन सिर्फ एक दफा पुकारा और आपको मुसलसल पूरा साल पुकारा जाता है। पुकारा मैं यबीउलना लिनफ्सिही, कौन अपनी जानों को मुझ पर कुर्बान कर देता है। 9 सहाबा अंसार एक ही घर के अफराद आगे बढ़े, एक एक करके 9 के 9 कट गए, लेकिन पीछे कोई नहीं मुड़ा। मेरे अजीज, तुम पर अतात का मामला इतना मुश्किल नहीं, आसान है। सिर्फ जिंदगी उसके मुताबिक करना है जिसकी जिंदगी को अल्लाह ने उसवा हसना करार दिया है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करे कि हम आज जानवर ज़िबा करते हुए साथ अपनी ख्वाहिशात को, सरकश तमन्नाओं को, अपनी बिगड़ी हुई आदतों को भी कुर्बान कर दें और अपने आप को उस तरह से पेश करें कि इधर हुक्म मोहम्मद हो और उधर गर्दन झुकाई हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।